Hello students, welcome to new video lecture. Today we are going to discuss about new phenomenon, that is power. So today we are going to discuss about next topic, that is power. So power, here when we are discussing about power, so we'll have to know what is meant by power. So power is nothing but the energy. When we are performing some work or when we are doing some work, at that time we utilize some energy. So the amount of energy what we are utilized or amount of work done, whatever work done we have done at particular unit of time is known as power. So the definition of power is nothing but the power is the rate at which work is done. Power is the rate at which work is done is called power. So here power, आपको for your kind information, power, the SI unit of power is joule और इसको हम लोग watt में भी दिखाते हैं. So we are going to take detail one by one. So first of all, power here what we have taken here, power is nothing but the work at which done. The rate at which, rate means what here, rate is nothing but the time period. So rate we can again conclude as per the time period. So power is equal to work divided by time. Power is equal to work divided by time. That's what SI unit of power. अब इस पे से हम लोग पावर का यूनिट बना सकते हैं. वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल. टाइम का यूनिट सेकेंड. मतलब क्या आ रहा है, वर्क का पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड. लेकिन जूल पर सेकेंड क्या है, इसका एसआई सिस्टम के हिसाब से जो है यूनिट पड़ता है. लेकिन एसआई सिस्टम को ही हम लोग लेने के बजाय, जूल पर सेकेंड को लेने के बजाय पावर को हम लोग इंडिकेट करते हैं वैट में. इसको ही हम लोग लिखते हैं वैट. द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वैट. पावर का एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वैट. नाउ व्हाई वी हैव टेकन द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वैट, सो यू नो वेरी वेल. Steam engine is nothing but the engines whatever means first locomotive. इंजन बोलने के बजाय हम लोग उसको बोलेंगे लोकोमोटिव्स, बिकॉज ट्रेन के इंजन्स नहीं होते, ट्रेन के लोकोमोटिव होते हैं. सो द लोकोमोटिव, फर्स्ट लोकोमोटिव वाज डिजाइन्ड बाय वैट सर. The steam engine was invented in 1781. First of all, so I'll tell you the date, the year, particularly year was taken, that is steam engine was invented in 1781. The inventor of steam engine is a scientist or a engineer. His name is Scottish scientist he was, and his name is James Watt. And his year also is given, that is 1736 to 1819, the year of birth and the year of death. So steam engine was invented by a Scottish engineer whose name is James Watt, and that's the reason the SI unit of power is taken as watt. So what is the SI unit of power? So 1 power is equal to 1 watt, or 1 watt is equal to 1 joule per 1 second. 1 joule per 1 second, what we have taken here 1 joule only, because power is equal to work की जगह पे joule per second है, तो मैंने वर्क की पावर की जगह पे उसका SI यूनिट लिख दिया जो कि है 1 watt. 1 watt is equal to 1 joule per 1 second. अब ये इतना छोटा है कि ये नॉर्मली जो है रेगुलरली हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते. फॉर दैट साइंटिस्ट बिल्ड दिस यूनिट एज अ एक्सटेंड लिमिट. तो उन्होंने इसको एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करके उन्होंने क्या किया है कि जूल को हम लोग, मतलब पावर को करते हैं हम लोग कन्वर्ट कर लिया, उन्होंने वो किया किलो जूल में. तो एज पर दे हैव सेड कि एक तो पावर को वैट में भी दिखा सकते हैं, नहीं तो दूसरा एक दिखा सकते हैं हॉर्स पावर. हॉर्स पावर. सो 1 HP माइट बीन यू नो अबाउट दिस नेम. जो कोई भी फार्मर फैमिली से या फिर जो कोई भी बोरवेल में जो हम लोग सबमर्सिबल पाइप्स लगाते हैं या फिर सबमर्सिबल मोटर्स, वट एवर द सबमर्सिबल मोटर्स वी आर यूजिंग, सो इन दैट वी गिव द नेम, दैट इज द मोटर इज 1.5 HP, 1.7 HP और 1.6 HP. HP means what? हॉर्स पावर. So 1 horse power is nothing but the approximately 746 watt. 1 horsepower is equal to 746 watt. Next, so 1 kilowatt per hour. Now scientists, they were confused because the work done is in the amount of thousands or kilothousands or ton. That's what they were doing. They do one thing, that is they have used in 1000 joule.
1000 joule perform in 1 second. 1000 joule work perform in 1 second is known as मीन्स इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, फिर इसको नाम दिया उन्होंने जो है किलोवाट का नाम दे दिया, इसको उन्होंने क्या नाम दिया है, किलोवाट का. किलोवाट मीन्स व्हाट, दैट इज पावर इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड. ये क्या हो गया 1000 को ही कैसे लिखेंगे हम लोग 1 के मीन्स व्हाट, किलो एंड वैट. अब यहाँ पे के क्यों लिया, बिकॉज के मीन्स व्हाट, किलो, एंड 1 किलो कैरीज 1000 ग्राम. दैट्स व्हाट वी हैव टेकन हियर 1 के वैट. नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी किलोवाट आवर के बारे में. ये तो 1 सेकेंड हो गया. 1 सेकेंड 1000 किलोवाट करना वॉज नॉट अ बिग डील. अगर आप लोग नॉर्मली देखते हो तो अगर आपने कोई एक 50 kg का बोरी उठा के उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गए और रख दिया वहाँ पे, एक पर्टिकुलर फेजेस के हिसाब से यहाँ पे आपका वेट भी काउंट होता है. तो एट दैट टाइम आपने क्या किया है, मीन्स 1000 जूल अप टू वर्क परफॉर्म कर लिया है. दैट्स व्हाट. ये भी बहुत ज़्यादा छोटा यूनिट हुआ, तो इसको और बड़ा किया गया. आप ये सारे लिख लीजिए, वीडियो रिवर्स करिए और पूरा ये वीडियो जितना भी मैंने लिखे वाला था कंटेंट वो आप लिख लीजिए. नेक्स्ट तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, फिर किलोवाट पर आवर को इंट्रोड्यूस किया. 1 के वैट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000. 1 के मीन्स व्हाट, 1000. 1 के मीन्स व्हाट, 1 किलो. 1 किलो इज नथिंग बट द 1000 per hour. 1 kilowatt hour. Hour means what? 1 hour is equal to how much minute? That is 60 minute. And that's what 60 minute means 1 hour. 60 minute and 1 minute is equal to 60 seconds. So that's what we have taken here, 60 into 60. Next. So when we are multiplying this, so 6 into 6 becomes 36. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros are there. देखो ना, 3 और 2 5. और 6 1 6, 6 6 36, 36 1 36, तो 3650. अभी अगर हम लोग इसको पावर में लिखते तो वो क्या आएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर. काउंट करिए 1 2 3 4 5 6. 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट आवर. किलोवाट आवर. और इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसको 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग बोलते हैं, दैट इज 1 किलोवाट आवर. यहां से देखते हैं हम लोग 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. अगर किसी ने बोला कि मैंने 1 किलोवाट आवर जितना वर्क डन किया है, तो उसने कितना वर्क डन किया है जूल के टर्म में, सो दैट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल जितना उसने वर्क डन परफॉर्म किया है. नेक्स्ट, सो नाउ यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे घरों में, जो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल रेगुलर हाउस ओल्ड सप्लाई में जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग हमेशा ये देखते हैं, वी आर ऑलवेज मेंशनिंग द वर्ड्स, दैट इज आई हैव यूज 76 यूनिट्स, आई हैव यूज 46 यूनिट. सो व्हाट इज मीन बाय 1 यूनिट? सो 1 यूनिट इज नथिंग बट द 1 किलोवाट पर आवर. मीन्स अगर हम लोग 1 यूनिट पे कर रहे हैं इन इंडिया, 1 यूनिट. अब ये डिफरेंट मीन्स डोमेस्टिक होम अप्लायंसेस के लिए अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है अलग से रेटिंग करता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग रेटिंग होती है. सो 1 यूनिट इज नथिंग बट द 1 किलोवाट आवर. 1 unit is equal to 1 kilowatt hour. Okay, next, so now we are going to take some numerical on this. So for the numerical we'll take one given numerical, we'll going to take this first. Next, I'm just changing the name because I have to write down it and afterwards solve it too. Next, Ram take 20 seconds to carry a bag. Ram take 20 seconds to carry a bag. Carry a bag weighing 20 kg. Weighing 20 kg to a height of 5 meter. To a height of 5 meter. How much power he has used? This is the numerical. So in that, now what we are going to do this first, whenever the numerical is given, at that time what we are going to write down first, that is given. So which quantities are already given? So here
20 seconds, height 5 meter, and weight is also given, that is mass, that is nothing but the 20 kg. So m is equal to 20 kg, time is equal to 20 seconds, and distance or height is equal to 5 meter. Okay, this is the given. Next, what we are going to calculate, for what we have to do this, we have to calculate power. So formula for calculating power, formula is power is equal to work divided by time. अब यहाँ पे वर्क गिवन है क्या कहीं पे? तो भी गिवन कंडीशन से समझ में आ रहा है क्या वर्क इज गिवन? नो, वर्क इज नॉट गिवन. सो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क फर्स्ट. टू कैलकुलेट वर्क इज इक्वल टू, formula of work is equal to force into displacement. But again force is also not given. But we know very well object is covering toward means object is falling toward the earth surface, या फिर object क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा के फोर्स निकाल सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट तो आ गया 5 मीटर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस, F इज इक्वल टू एम जी. एम इज 20, so that's what 20 into G is 10, that is 200. Force is equal to 200 Newton. Now we'll took this force and put in this equation, so we'll get the work done. So work is equal to 200 into displacement. Displacement is 5, so that is taken as 5. Next, work done is equal to 5 into 2 becomes 10 and 20 as it is. Means 1000, or 200 into 5 becomes 1000. So work done कितना आया? 1000 जूल का आया है. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो आ गया वर्क डन, निकालना है पावर. तो टू कैलकुलेट पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. सो वर्क क्या है हमारा? वर्क आया 1000 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? तो टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स. तो 0 0 गेट कैंसल, 2 1 जा 2 5 जा, आंसर इज 50. सो हियर कम आवर आंसर, दैट इज आंसर इज, सॉरी, हियर कम आवर आंसर, एंड आंसर इज 50. पावर इज इक्वल टू 50 वैट. अब ये कुछ कुछ बुक में 50 वैट है, कुछ कुछ बुक में अलग किया है. उन बुक्स में क्या चेंजेस किया है आई विल टेल यू. दे हैव टेकन, यहाँ तक तो सब कुछ सेम है. F इज इक्वल टू उन्होंने भी लिया है mg, लेकिन उन्होंने m की जगह पे लिया है 20 एंड g की जगह पे लिया है 9.8. तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उन्होंने गिवन है कहीं पे, अगर गिवन कंडीशन है कि टेक g इज इक्वल टू 9.8, एट दैट टाइम ओनली यू हैव टू टेक 9.8, अदरवाइज यू कैन टेक 10 ऑल्सो. आपको 10 ही लेना है. अगर गिवन है 9.8 तो ही 9.8 लेना है. अगर गिवन नहीं है तो सीधा सीधा आप 10 लेके भी कर सकते हो. अगर आपने 9.8 लेके किया तो आपका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाता है. 9.8 इंटू 20, ये जीरो क्या हो जाएगा, इसको शिफ्ट कर देगा. 98 98 टू जा 98 1 जा 98 98 टू जा 196. सो 196, 98 टू जा 196. फोर्स इज इक्वल टू 196. नाउ वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. 196 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30, 30 कैरी 0 0 मीन्स ये आ जाएगा 0 मीन्स ये आएगा 0 9 8 98 5 9 जा 9 8 जा 90. वर्क डन इज इक्वल टू कितना आएगा? 980. तो अभी पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. वर्क कितना? 980 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? टाइम देखिए आप यहाँ पे 20 सेकेंड्स, तो ये 20 लिया. 0 0 कैंसल, 9 2 4 जा 8, 1 कैरीज 9 जा, मीन्स पावर कितना आया है? 49 वैट. चलेगा, आप 9.8 लेके करिए या फिर 10 लेके करिए, डजेंट मैटर. अगर गिवन 9.8 होता, मतलब यहाँ पे अगर ऐसा होता टेक g इज इक्वल टू 9.8, एट दैट टाइम विल टेक 9.8. बट यहाँ पे टेक नहीं है, तो दैट्स व्हाट मैंने 10 ही लिया. आप 10 लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेनॉन. सो आपके लिए एक न्यूमेरिकल है जो आप होमवर्क में ले सकते हो. एज अ होमवर्क आप टेकन, यू जस्ट टेक एज अ होमवर्क. सो इन दैट न्यूमेरिकल आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस सम सर्टेन चेंजेस. एक काम करते हैं, हम लोग इसको चेंज ही कर देते हैं पूरा. अ 25 वैट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 hours. अ 25 वैट इलेक्ट्रिक bulb is used for 10 hour. Is used for 10 hour every day. Every day.
How much electricity does it consume each day? How much electricity does it consume each day? आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस phenomenon. If you have a doubt, so you can ask me in the comment box which is given below. Otherwise, don't forget to subscribe my channel and turn on the bell notification. Whenever I'll upload the video, you will get the notification. If still you have a doubt, so you can ask me in the comment box. In next video lecture, we are going to take some numericals on the basis of this chapter, that is work, power, energy. Thank you. I hope you understand this phenomenon. If you have a doubt, so ask me in the comment box which is given below. Otherwise, don't forget to like, share and subscribe my channel and turn on the bell notification. Whenever I upload the video, you'll get the notification. Thank you.